मेरा नाम बासमती मुर्मू है और मैं ग्राम गुंदवार की रहने वाली हूँ। पोस्ट चुरचू, थाना चुरचू, जिला हजारीबाग, राज्य झारखंड। मैं एक गृहिणी हूँ और खेतीबाड़ी भी करती हूँ, साथ में बकरी भी रखी हूँ। उसके बाद आंगनबाड़ी सेविका भी हूँ और सेवा से आज्ञावान भी हूँ और मैं जड़ी बूटी का दवा भी बना करके बेचती हूँ। मेरा नाम मीरा देवी है। मैं रानी घाट की हूँ, राम सभा गौशाला, वार्ड नंबर 40 से, और मेरा काम है मछली बेचना। મારું નામ મમતા જનક બારોટ છે। અમે કોટેશ્વરમાં રહીએ છીએ, જે અમદાવાદમાં છે। મારી અથાણાની ફેક્ટરી છે, જેમાં અમે અથાણું બનાવીએ છીએ। इसमें 75% जंगल से ही दवा मिल जाता है और 25% ही हमको अपने से लगाना, यानी कि दुकान से खरीद के लाना पड़ता है। थोड़ा कम ही पूंजी में हम लोग उसको दुकान को शुरू किए। 2019 से हम लोग चरही मेन रोड में दवा दुकान चला रहे हैं और प्रतिदिन 5-6 पेशेंट आते हैं और उन लोग का इलाज करते हैं और इससे हम लोग का इनकम भी अच्छा आ रहा है। मेरा घर में महिला में से अकेले सिर्फ हम ही थे, तो मेरा ससुर और मेरा हस्बैंड दोनों मछली का ही काम करते हैं, मारते हैं मछली। तो हम थोड़ा पहले मेरी सास बेचती थी, तो सास डेट करने के बाद तो मतलब दूसरे को देते थे तो कम पैसा ला के देता था, तो खुद से बेचना स्टार्ट किए। હું એક બહુ જ નાના ઘરેથી છું। મારા ઘરમાં છોકરીઓ બહાર જઈને નોકરી કરે એ બહુ મોટી વાત હતી, તો બહુ જ કહેવાથી કદાચ એ માની ગયા અને મને જોબ કરવા દીધી। અને ઘરમાં જેટલો ટાઈમ અમે સેવ કરી શકતા હતા એ ટાઈમમાં અમે અથાણું બનાવતા હતા। થોડા ટાઈમ પછી એમ લાગ્યું કે હવે આ કામ જે અમે કરી રહ્યા છીએ અથાણું બનાવવાનું એ સારું ચાલી રહ્યું છે, બહાર લોકોને પસંદ આવે છે। હું મારું પૂરું ટાઈમ એ અથાણા બનાવવામાં આપવા લાગી અને સેલિંગ મારા હસબન્ડ કરવા लाग्યા। પણ જેમ જેમ એમાં પ્રોસેસ કરતા ગયા ત્યારે એમ લાગ્યું કે આપણા બે હાથ એમાં નહીં ચાલે। જે બી આજુબાજુમાં પડોશી રહેતા હતા એમને કંઈ થોડું થોડું કટિંગનું કામ ચાલુ કર્યું। ઘરમાં જેટલા પણ મેમ્બર્સ આવીને મારી સાથે કામ કરી શકતા હતા એ બધાને રાખ્યું। दीदी लोग आई तो मतलब कि बगल में मीटिंग कर रहे थे, तो उस मीटिंग में हम गए। तो जब हम इस मीटिंग को सुने समझे तो दीदी लोग बताए कि इसमें मतलब बचत भी होता है। तो हम सवाल भी किए कि बचत करने से क्या क्या फ़ायदा होता है, तो बचत के बारे में बताई। कुछ दिन के बाद फिर दीदी लोग को बुलाएं, तो दीदी लोग को बुलाएं तो हम पहले यहाँ खाता खुलवाएं सबका। बिजनेस तो जो भी टूटा फूटा करते ही रहे, मतलब उसी से कुछ कुछ रखते चले गए। और जब हाथ में मेरा पैसा आ गया तो हम इस चीज़ को और थोड़ा बढ़ा दिए। મારી એક ફ્રેન્ડ હતી જે સેવા બેંકમાં જતી હતી કે કદાચ ત્યાંની કસ્ટમર હતી, એને મને એડવાઇસ આપ્યું હતું, મમતા થોડી થોડી સેવિંગ રાખ, તારા માટે કામ આવશે। સેવિંગ કોઈ 100 રૂપિયા 200 રૂપિયાથી એકાઉન્ટ્સ પણ ઓપન નથી થતા, શું કરીશ 100 રૂપિયા બચત કરીને? આગળ જઈને આમાં જ તને લોન પણ મળશે। લોન અને લેડીઝને એ સમયે એવું બોલવું પણ ઘણું અઘરું લાગતું હતું 2005માં કે લોન આપશે કોઈ બેંક, એ બી લેડીઝને ના હોય। હું કરું છું શું, ખાલી અથાણું જ તો બનાવું છું। જે ક્લાસીસ એમના ચાલતા હતા ત્યાં જઈને બેઠી, એમને સાંભળ્યું કે શું કહેવા ઈચ્છે છે, તો એમ લાગ્યું કે ના આ બેંક એટલી સારી છે જે મહિલાઓને આગળ વધવા માટે સપોર્ટ કરે છે। જે પહેલી લોન હતી મારી 1 લાખ રૂપિયાની હતી, જેનાથી અમે એક જગ્યા પણ રાખી, એટલા બધા વર્કર્સ પણ રાખ્યા જેમને હું સેલરી પે કરી શકતી હતી। અમે 1-2 સાધન એ વખતે પરચેસ કર્યા હતા માર્કેટિંગ માટે। પછી એમ થયું કે હવે એક ગાડી 4 વ્હીલર પરચેસ કરી દઈએ જેનાથી વધારે ક્વોન્ટિટીમાં માલ ડિસ્પેચ થાય। પછી બેંકે અમને એ પણ શીખવાડ્યું કે જે પેમેન્ટ્સ કરવા માટે તમે ચેક સાઇન કરો છો, બેંકમાં લાઇનમાં ઊભા રહો છો, એના કરતાં બેટર છે કે યુપીઆઈ જે અત્યારે આજકાલ નેટ બેન્કિંગ સિસ્ટમ્સ ચાલી રહ્યા છે એનાથી કરીએ। એના હિસાબે અમે ધીમે ધીમે આઈટી રિટર્ન પણ ફાઇલ કરવાનું સ્ટાર્ટ કર્યું। ત્યારે અમે કદાચ 5 લાખ કે 10 લાખનું ટર્નઓવર વર્ષે કરી લેતા હતા, જે ધીમે ધીમે વધતા અત્યારે અમે 1 કરોડ સુધીનું ટર્નઓવર વાર્ષિક બતાવીએ છીએ। जब हम लोग को थोड़ा सा ज़्यादा मरीज लोग आने लगे, उन लोग के लिए दवा बनाना पड़ता है। हम तो अपना काम से व्यस्त रहते हैं, इसीलिए फिर कैसे जल्दी पल्दी दवा तैयार करेंगे, तो उसके बाद फिर हम मिक्सचर मशीन का उपयोग करने लगे। पहले तो हम लोग गांव-गांव जा कर के प्रचार करना पड़ता था, अब तो फ़ोन का सुविधा है, नंबर सब दे दिए हैं। पंपलेट छपवाए और पंपलेट जैसे लोग मरीज लोग आते हैं तो वो लोग मरीज लोग को देते जाते हैं, तो वो स्वस्थ हो जाते हैं, तो वो अगला कोई को बताते हैं कि आप इस नंबर से संपर्क कीजिए। और वे फ़ोन से अभी संपर्क करते हैं तो हम लोग वो लोग आते हैं
जब हम लोग पहला कमाई किए, उस पैसे को हम लोग दुकान को बढ़ाने के लिए हम लोग सोचे, ताकि कल को ये हमारा दुकान थोड़ा बड़ा रूप का धारण करे। फर्स्ट दिन जो हम काम किए तो हमको अपने आप में बहुत खुशी हुआ कि हम भी कमा सकते हैं। जो भी कमाई हुआ तो पहले तो घर का सामान लाए, तब कुछ दिन के लिए अगर हम खरीदारी बंद करेंगे तो जो कमाते हैं हम उस चीज़ को हम बचा सकते हैं। કોવિડ જ્યારે પણ આવ્યું બેન આપણા ત્યાં, ત્યારે એવું હતું કે શાકભાજી પણ નહોતા મળતા, કે વેપારીસના તરફથી અમને એવા કોલ્સ આવવા માંડ્યા કે શું તમે આટલી અથાણાં અમને આપી શકો છો, શું તમે અમને ખાંડ આપી શકો છો। જેમ અથાણાની કંપનીમાં અમારા માટે સોલ્ટ નમક એક મોટી વાત છે, તો એ વખતે લોકોને નમક પણ નથી મળતું, કારણ કે કરિયાણાની દુકાનો પણ બંધ હતી। નાની નાની બોટલ્સમાં, નાની નાની થેલીઓમાં અમે મરચું, હળદર, ખાંડ અમારેથી પોસિબલ જેટલું થયું એટલું પેક કર્યું। જ્યાં જેને જેટલી જરૂર હતી, કરિયાણાવાળાની દુકાનવાળો મંગાવે તો એને આપીએ। તો એમ થયું કે કંપની બી મારી ચાલુ રહી, મને નફો ના મળ્યો એ ચાલશે, પણ મારું માલ બગડ્યું નહીં, લોકો સુધી પહોંચ્યું, એમને ખાધું। એના પછી જ્યારે બી અમે એ જ દુકાનવાળાને ઉત્કર્ષના લેબલની સાથે માલ આપ્યું તો કસ્ટમર્સ એ જ અથાણું લેવા એના ત્યાં આવતા હતા। તો એ હિસાબે મને એમ થાય છે કે મારી પબ્લિસિટી થઈ ગઈ, એ પણ ફ્રીમાં, અને મેં એક સારું કામ કર્યું कि वक्त कोई ने भूखिया ना रखा। अथी बोले ना कोविड-19 का, इससे पहले मेरा हस्बैंड का तबीयत खराब हुआ था। दीदी लोग बोली कि ठीक है तो हम लोग करेंगे सेवा भारत के थ्रू, संगठन के थ्रू। तो वो लोग क्या किए, लेके गए सिरसा मेडिकल, वहाँ से फिर इलाज किए, वहाँ से रेफर कर दिए पटना। तो वहाँ से जब इलाज करके आए तो उसके बाद लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगा तो वो पिछले बार जो लॉकडाउन लगा था उसमें मछली का बिजनेस बहुत अच्छा चला। तो दूसरी बार में क्या हुआ कि मछली का बिजनेस में हम लोग को बहुत घाटा हुआ, क्योंकि मछली खरीदना कम चाहते थे आदमी लोग, भीड़ कम लगता था, इस कारण से हम लोग को बहुत दिक्कत आया। तो कोविड-19 के बारे में फिर एक कॉलिंग वाला काम आया था, वो बीमारी के बारे में, जैसे कि किसी को अगर तबीयत खराब है, मोहल्ला में रहते हैं तो पता चलता है कि फलाना आदमी को तबीयत खराब है, तो ऑनलाइन डॉक्टर से बात कराने की बात था। तो नंबर लिए दीदी से, ऑनलाइन वो डॉक्टर देखते भी थे, उसमें भी हमको बहुत सुधार हुआ। मेरा मोहल्ला में दुकान हम लोग खोल नहीं सकते थे और रोड पर हम लोग चल नहीं सकते थे, गाड़ी चला नहीं सकते थे, तो हम लोग के साथ बहुत दिक्कत आई कि मरीज लोग भी फ़ोन करते थे कि हमको दवा चाहिए, तो हम उसके तक दवा कैसे जाएं, हम कहीं पैदल जा कर के तो उनको दवा पहुंचा नहीं सकते थे। उन लोग को बोले कि आप अपना सुविधा देख कर के मेरे तक पहुंचिए, हम आपको दवा देंगे। पैसा सब बहुत कम आया था, लेकिन फिर भी हम लोग हिम्मत नहीं हारे और यही सोच करके हम लोग महामारी में इसी तरह हम लोग जूझे। उनकी प्रगति लिए यही चाहते हैं कि वो आगे बढ़े, बिजनेस को भी बढ़ाए आगे, कि अगर कहीं से मदद मिले तो इस चीज़ को और बड़ा कर देना चाहते हैं। जैसे अभी 2 आदमी मिलके कर रहे हैं, उसमें अगर ज़्यादा हो जाएगा तो 5-6 मिलके भी बढ़ा सकते हैं बिजनेस। इसमें मतलब किसी का दबाव में नहीं रहते हैं, मतलब कोई तरह का दिक्कत हो जाता है तो उस दिन नहीं भी जाते हैं। सबसे अच्छा हमको यही लगता है कि अपना काम अपना आत्मनिर्भर है, कि अपने आप में है। उद्यमी महिला वैसा है जो अपने से उत्पादन करके, अपने से बना करके जो बाजार तक ले जाती है और उससे पैसा कमाती है, अपना रोजी रोटी करती है, अपना परिवार चलाती है। जिस तरह से हॉस्पिटल में या ये में पेशेंट लोग लगे हुए रहते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में, कि लाइन बन लाइन मरीज लगे हुए रहते हैं, तो वो वैसा ही मेरा दुकान में भी लोग आए और दवा का विश्वास करके ले जाएं और वो दवा खा करके स्वस्थ रहे। हम यही चाहते हैं कि वो लोग अपना जिंदगी, अपना स्वास्थ्य पर ध्यान दें। બેન કોઈ પણ બી કામ નાનું નથી, તો જે પણ માણસ જે પણ સપનું જુએ છે, એને જે વિચાર્યું છે કે હું આ કરી શકીશ, બસ એને સમય આપો, એની પાછળ લાગી જાઓ અને મહેનત કરો।